Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Andaman Nicobar Chess Association, I extend a warm welcome to all of you to this press conference. This is with regard to the All India Open Chess Tournament, federated chess tournament, which we are organizing for the first time in the islands between 11th to 15th of August. We have representation from 16 states of the country, apart from our own islands. This is being conducted under the aegis of the All India Chess Federation. Now, of late, I think you all must have been seeing that chess has really caught on in the islands. There have been tournaments held almost every month. ANCA has got a coaching center where we coach enthusiastic kids. Our kids have been going outside onto the mainland also and winning a lot of tournaments. They're making our islands proud. We, in fact, right now have with us Kasturi Bai. She just got back from Uzbekistan. She represented India in the Asian Games Championship, chess championship under the under 17 category, and she got a silver as well as a bronze medal. So our kids are really doing well, and in order to give them that exposure so that they can play against the best in the country, we decided to organize this, and that's how this tournament took shape. And finally, it's going to happen in the islands for the first time, starting on the 11th. It's a 5 days program, which will be organized in TSG, Hotel TSG, Grand, Dollygunge. And in Andaman Nicobar Chess Association has been adjudged as the best chess performing state by the All India Chess Federation based on the players' registration. So this is a feather in the cap for the Andaman Nicobar Chess Association. And I'm sure with the support, we want you to help us, take chess across to every nook and corner of the islands. So this is something that we look forward to from the press and the media. 160 players taking part in this tournament, and out of which around 30 to 40 people from the other parts of the country are coming in here, about 16 states, and we are providing them up and down accommodation, food. We're generally playing a good host, and they're all good rated players. So our kids, our players out here get to know where they stand playing against some rated players, some good national talent. So this is going to be a boost for our Andamans, in the chess landscape of Andamans. The chief guest for the 11th function will be Secretary Sports and Education, Mr. Yash Chaudhary. पहले तो सब मीडिया वालों का हाथ जोड़ के आमंत्रण करना चाहूँगा कि आज आप हमारे अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी हमारे साथ हैं। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो चेस इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड में डेवलप करना चाह रहा था, आज हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास एक कोचिंग सेंटर है, हमारे पास ट्रेन आर्बिटर्स है, जिसमें कि 10 नेशनल ट्रेंड आर्बिटर्स है और एक इंटरनेशनली ट्रेंड आर्बिटर्स है। मतलब कोई भी आपका नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन होएगा तो ये वहाँ जाके वो गेम कंडक्ट करा सकते हैं और उनके लिए इनको जो ड्यू, इनका जो रिन्यूमरेशन है वो भी मिलेगा। तो एक काइंड ऑफ स्पोर्ट के लिए पैशन भी है, प्लस उनके लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है। थर्डली, आज हमारे पास चाइल्ड प्रोजेडी कस्तूरी बाई है,
जो कि एक नेशनल एशियन स्कूल विनर है। हाल ही में उज़्बेकिस्तान से उनका रिटर्न हुआ है। हमारे कोचिंग सेंटर में लगातार 50 से 60 बच्चों का बैच चल रहा है, जो 3 से 4 ट्रेनर कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं। अवसर लगने पर हमें जो AICF ऑल इंडिया चेस फेडरेशन से भी बराबर सपोर्ट मिल रहा है, और जब कोई प्लेयर एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर देता है, हम चाहे तो उन्हें थ्रू वीडियो कॉल्स इंडिया की नेशनल लेवल ट्रेनर्स से भी गाइडेंस एंड ट्रेनिंग दिला सकते हैं। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने AICF के साथ मिलकर ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुहिम प्रस्ताव रखा है कि चेस इन स्कूल प्रोग्राम इंक्लूड किया जाए, कि हमें सबको पता है कि चेस एक ऐसा गेम है जो हमारे मेंटली हमें बहुत ही एक्टिव एंड इनेबल करता है। तो इससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। या तो हम चेस इन स्कूल या चेस क्लब्स करके कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम लाएंगे ताकि हम और स्टूडेंट्स को इंगेज कर पाएँ। आज ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए जो खुशी का मौका है कि आज पहली बार अंडमान में इस लेवल का एक टूर्नामेंट हो रहा है, जो एक फीडे रेटेड टूर्नामेंट है। जब आप फीडे रेटेड टूर्नामेंट कहते हैं तो आपकी रेटिंग होती है चेस में, तो जब आप ऐसे फीडेड रेटेड टूर्नामेंट में खेलोगे तभी आपकी चेस की रेटिंग खुलती है। फिर आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते रहते हो और ऑटोमेटिकली वो प्लेयर को पता रहता है उसका क्या लेवल है, क्या कैटेगरी में है, एंड स्लोली वो प्लेयर अपने पाथ पे चल सकता है। मैं AICF हमारे जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर संजय कपूर, वो हाल ही में पीछे आए भी थे जब हमने अपने चेस के ऑफिस का ओपनिंग किया था और चेस कैंप को ओपनिंग किया था जहाँ कोचिंग चल रही है। तो डॉक्टर संजय कपूर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनकी टीम जिसमें उनके स्टाइलवर्ड सचिव भरत चौहान जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज उनके ही इंटरेस्ट के कारण चेस को पूरे इंडिया में रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी जी का भी यही सपना है और यही विजन है कि चेस को फेमस किया जाए, क्योंकि चेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि चेस जो स्पोर्ट है वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ था आज से कई साल पहले, और उसको चतुरंगा कहते थे। तो आज ये चेस वापस हम चाह रहे हैं कि इंडिया में प्रमोट हो। इंडिया से ही मास्टर्स निकले, हमारे पास विश्वनाथ आनंद और हम्फ्री जैसे ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं जिसने इंडिया को अपने इंटरनेशनल स्तर पे प्राउड किया है। तो सिमिलरली चेस को वापस उसी मुकाम पे लेके आना है, वो हमारा टारगेट है। इसके साथ चेस का हम ये नेशनल टूर्नामेंट के बाद भी इसके और एक मैं बता दूं, इसकी जो विनिंग राशि है, जो जीत की राशि है 1,25,000 रुपीज़ है। और हमने अर्लियर ये कंपटीशन सिर्फ 130 पार्टिसिपेंट्स के लिए रखा था, बट क्योंकि हमारा रिस्पांस इतना अच्छा रहा है और ओवर सब्सक्राइब हुआ है, फाइनली हमने परमिशन लेके AICF से इसको 160 पार्टिसिपेंट्स पे जाके लिमिट किया और 30 एंट्रीज एडिशनल ली है। तो हम लोग सब आइलैंडर्स के साथ बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ऐसा मौका जो हमें मिला है, सब प्लीज़ आगे बढ़ के आए, सब आइलैंडर्स, सब बच्चे आए। 11 अगस्त से 15 अगस्त, जो 11 अगस्त ओपनिंग है एंड 15 अगस्त क्लोजिंग है, प्लीज़ आके ये इवेंट को विटनेस करें ताकि हम चेस के बारे सबको एजुकेट कर पाए और सब ये स्पोर्ट को एंजॉय कर पाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग चेस। थैंक यू अगेन। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि तनवीर सर ने बताया कि फीडे रेटिंग टूर्नामेंट के बारे में, जैसे कि जब फीडे रेटेड टूर्नामेंट में खेलते हैं प्लेयर्स, तो उसका फीडे रेटिंग जो इंटरनेशनल रेटिंग बोलते हैं वो ओपन होता है। जैसे कि आप लोग लोगो देखे होंगे वहाँ पे फीडे, दैट इज़ फीडे जो है एक फ्रेंच एक्रोनिम है, जो फ्रेंच में फीडे फेडरेशन इंटरनेशनल डी HSA माने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, फीडे रेटिंग जैसे कि प्लेयर्स का रेटिंग मेंटेन करना, उसका अपडेट करना और उसको पब्लिश करना, उसका मेन रेगुलेट करना उसका मेन फंक्शंस है। अभी कोई भी एक चेस प्लेयर होता है, उसका पहला सपना होता है कि वो अपना इंटरनेशनल रेटिंग ओपन करे। तो उसके लिए वो क्या करता है कि कोई एक रेटिंग टूर्नामेंट कहीं पे भी, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो वो क्या करता है अपना सपना पूरा करने के लिए कोई जगह मेलैंड में जहाँ पे फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जाकर वो खेलता है। और उसको फीडे रेटिंग ओपन होने के लिए क्या है, मिनिमम जो है 5 रेटेड प्लेयर से उसको खेलना होगा, मिनिमम 5 रेटेड से खेलना होगा, और उसको जो है रेटिंग खुलने के लिए मिनिमम 50% ऑफ स्कोर करना होगा। जैसे कि अगर एक मैच खेलता है तो उसका स्कोर होता है 1 पॉइंट, 1 गेम 1 पॉइंट। तो उस तरह अगर मिनिमम जो है 5 रेटेड प्लेयर से अगर वो खेलता है
और 50% स्कोर अचीव कर लेता है, यानी 2.5 पॉइंट अगर वो स्कोर कर लेता है तो उसका जो एवरेज रेटिंग है, जो पाँचों प्लेयर का एवरेज रेटिंग है, तो उसका वो रेटिंग खुल जाता है। तो ये पहली बार हमारा यहाँ पे फीडे रेटिंग टूर्नामेंट हो रहा है। तो यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं जो मेलैंड जाके टिकट्स वगैरह का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस बेयर कर और बहुत ज़्यादा उनके लिए परेशानी झेल कर जो है उन लोग ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ उनके डोर स्टेप में, उनके होम ग्राउंड में जो है फीडे रेटेड प्लेयर्स जो है बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनके साथ खेलेंगे इन लोग, और मैक्सिमम हमारे बच्चे जो है यहाँ का फीडे रेटिंग ओपन होने का संभावना है। और इस टूर्नामेंट में करीब जो है अराउंड 50 प्लेयर्स जो है रेटेड प्लेयर्स हैं। यहाँ के हमारे अराउंड 20 रेटेड प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग कस्तूरी भाई, और बाहर से जो है करीब 4 to 5 टाइटल प्लेयर्स भी आ रहे हैं और रेटेड प्लेयर्स भी आ रहे हैं। जितने रेटेड प्लेयर्स आएंगे तो हमारे यहाँ के बच्चों को जो है उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगा कि उनका रेटिंग खुले। तो यहाँ पे हमारा अंडमान से सबसे ज़्यादा जो रेटिंग है हमारा यहाँ का पी ताताराव जी है, जो कि 2000 एबो रेटिंग है उनका। माने जो रेटिंग है वो किसी का रेटिंग होता है तो हमको पता चल जाता है तो कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। रेटिंग का पर्पस यही है कि वो उसका लेवल क्या है, उसका कैटेगरी क्या है। जैसे कि हम विश्वनाथ आनंद जी है और कार्लसन है जो हमारे वर्ल्ड चैम्पियन है, वो नंबर 1 प्लेयर है, उनका रेटिंग है 2800। उन लोगों को जो है सुपर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, और अलग अलग कैटेगरी है जैसे कि 2600, 500 इनका ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, उस तरह इंटरनेशनल मास्टर से ऐसे कैटेगरी है। जो हायर लेवल में होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं, और रेटिंग से हमको पता चल जाता है कि अगर लोअर रेटिंग है ये कम परफॉर्म करने वाला प्लेयर है। दूसरी बात, ये 50 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, उसमें से अराउंड 20 प्लेयर्स हमारे आइलैंड के हैं, जिनमें यहाँ से जो है टॉप रेटेड प्लेयर जैसे कि मैंने बताया पी ताताराव जी है जिसका 2000 प्लस रेटिंग है। उसके बाद AKS श्रीमन नारायण जी है, उनका रेटिंग करीब 1800 है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आती है कस्तूरी बाई जो कि 3rd प्लेस में है अंडमान से, जो अराउंड 1600 प्लस रेटिंग है। उसके बाद रतन सरकार जी है जो 4th पोजीशन में है, और डोमिनिक जेवियर जो है वो 5th पोजीशन में अराउंड 1400 के रेटिंग से। तो इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अराउंड 20 प्लेयर्स हैं यहाँ अंडमान से, और उनको चांस मिलेगा हायर रेटेड प्लेयर से खेल के, उनसे जीत के जो है इनका रेटिंग आगे बढ़े। जब इनका रेटिंग एक सर्टेन लेवल में आ जाता है तो इनको जो हमारे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उनसे जो है अवार्ड्स मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर, फीडे मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर। तो वो एक बहुत बड़ा माने अचीवमेंट है प्लेयर्स के लिए, रिकग्निशन है। This whole chess tournament would not have been possible without the support of our very benevolent sponsors. There have been a lot of sponsors. It's been an overwhelming response to our appeal request for sponsorships, and the industry and the trade members of the and general public have all come forward in a big way, and this is definitely going to help our local talent. It is going to encourage them, and they are going to do even better. And I'm sure we will have more Kasturis. In fact, why we are trying to start this chess clubs in all the schools. Once this chess clubs start, once our kids start getting interested, in fact, chess is such a, it's not an expensive game at all. Everybody can play it at home. The kids should start getting interested. You know, the parents have to get their kids interested in that. And once they start getting involved in playing chess, then you know we can identify potential and nurture that talent. So we will have more Kasturi Bais in the islands. We will have more Gukeshes and Vishwanath Anands coming out from the Andaman Nicobar. That is what we want to achieve out here, and this is possible. For this, we need the support of the Andaman administration and all the school management to take this idea and start chess in schools, the chess clubs in schools. I hope everybody will play in the coming tournament, which is going to be held from 11 to 15 in Andaman Nicobar Islands. It is a rating tournament, so it will help everyone to play and participate the tournament, which is going to be held in Dollyganj Hotel TSG Grand. And every
kids can open their rating, initial FIDE rating. So everyone's dream, like sir has already mentioned, that everyone's dream is to get a FIDE rating. So it will be a good chance for every young kids to get a FIDE rating. That's it. Thanks. So this game has suddenly become very popular in the island. As when we opened up this registration के लिए, there have been so many entries. We had to restrict. We had to restrict. More than 300 entries आ गया, and then we have limitations also. We don't have such big halls, and all we have our limitations. So we had to restrict it, and we kept it to 100 or something like that. With great difficulty, again थोड़ा 20-25 we have increased. So anyway, we'll have to plan big, because as soon as it spreads to the islands, it's going to get even bigger. There's going to be larger turnouts. We have to be prepared for that, and we'll have to find a way of again elimination and other things, so where we can restrict and get the best talent. The idea is this is going to be a platform for the kids and for the talent out here to move on to the national level. The ratings, national, as he says, some of the kids and some of the people here will now get an opportunity to start their ratings. Once they start, and then there is no limit. Then it is only question of exposure. Today online, everything is possible. So we have done, this is just the start. There will be many more. We will definitely keep doing. We just need the support. You have to spread this message across to all the parts of the islands. Let's, in association with the Rotary Club of Port Blair, we also want to start chess parks in the islands. Hi, good evening. So with the Chess Association and Rotary, we are planning to have various chess parks around in the islands, so that anybody who wants to play chess or explore it more, they can use this facility. So we are trying to work on it together with PMB and other organizations too, municipal council also. So let's see how this thing progresses. This event, the international arbiter from our islands, renowned international arbiter H. Dinesh will be the chief arbiter, and one more deputy arbiter is coming from Karnataka, Bangalore. He will be also assisting Andaman Nicobar Chess Association. We have around 10 arbiters. We are from Andaman. Yeah, locally we have. The cash prizes are worth 1,25,000. Yeah. सर एनका और खासकर आपके सहयोग से कस्तूरी बाई बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर आई है अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, लेकिन जिस तरह से निरस्ता अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए दिखाई है, क्या आप लोगों ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच नहीं किया सर कि बच्चे के लिए कुछ करें? जैसे कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या वो बच्ची उसके काबिल नहीं है सर कि उनको कुछ अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से? रजिस्ट्रेशन जब ये जीत जाए कस्तूरी बाई, तो उनको स्वच्छ भारत एम्बेसडर बनाया गया है, एंड स्वच्छ भारत एम्बेसडर बना के रिकग्निशन दिया गया है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, एंड इन प्रोसेस है। पहले भी इनको LG रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। चेस मैंने जैसे कहा, एक नया स्पोर्ट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो जैसे आपको पता है गवर्नमेंट के साथ सर्टेन फ्रेमवर्क है, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, तो इट टेक्स टाइम। अब चेस का और कस्तूरी का जैसे जैसे करियर और नाम आगे बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो काम से ही रिकग्निशन उसको खुद आएगा। आई एम श्योर हमें जाना नहीं पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन या किसी के पास, खुद सामने से ही लोग आके हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारे आइलैंड का नाम रोशन हुआ है यहाँ। तो सब चाहते हैं, सबकी बेस्ट विशेज एंड In fact, we even took it up with the Chief Secretary also. He said, but whatever is permissible within the framework, within the rules, will be done. But yes, this is something that we have put in their minds. Unko bhi aage ja. It's not that we are also trying to, at every forum, we are also trying to take up this thing. Things are not going to change overnight. It will take some time, but the movement has started. The whole thing has been initiated. I am sure aage jaake she has laid the road, and now everybody will be there driving down. We will definitely have more champions like Kasturi Bai coming, and administration will definitely take cognizance of this, and there will be all this, whatever you ask for will also come.
So it is only a matter of time. We'll have to have the patience. Have anything today? When we started, we didn't have this many players. We had to call each school में जाके थोड़ा बुलाना पड़ा कि please come and take part. Today you announce, and kids are so enthusiastic. No, they keep asking, sir, when is the next tournament? Aisa this thing. Because every 15 days, 20 days, we've been conducting some tournament or the other. One important thing, we have still not started something in the other islands. Once we start, I think this will be really, chess will really take off in the island. I'm sure one day you're going to see some world champions coming out from these islands. And I'm 100% I'm sure it will happen. It's not difficult. Our kids are really talented. They're all intelligent. It is only the exposure that is lacking. Exposure मिल गया, they will definitely do. Maybe proper training, more better Exposure training is what. In fact, we have also talking to the All India Chess Federation. हम president से भी request किया है कि that you must do something for talented kids. Talented kids like this, when they reach a certain level, certain rating, they should take them on and bring them, train them, have proper coaches and other things, so that international exposure next. After the national level, the international exposure also should be. In fact, we were also trying to get some international, today we have Gukesh and Pragnananda, all of them, they are almost close to world number 1 today. And so we were trying for them, but they're all busy playing the tournaments elsewhere. But we will definitely get them here. तो धीरे धीरे आई होप कि हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो इससे बहुत बड़े ग्रैंड वे में होगा और हमारा जो प्राइज मनी होगा इससे काफ़ी बड़ा होगा, तो हम और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक पहला अचीवमेंट है और ये आई होप कि हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की है कि हम इसके साथ पूरी तरीके से मतलब इनके साथ पूरा निभा सके। तो वी विश कि हमारा ये बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहेगा। हम चाहेंगे कि